listing. What is listing? Listing is admitting a security for trading into the stock exchange. So what are the disadvantages of listing? That's what we were saying. We said there could be speculation, there could be possibility of insider trading, there could be other things like companies, and other companies may have a bad view about the company when you publish all the information. Now, when we talk about the next aspect of the disadvantages, management could enter into a higher agreement with brokers to artificially, see, this is called as price leaking, where if the management says you push the prices up by creating an artificial demand in the market, and they do so from 50 rupees if the stock rises to 80 rupees all of a sudden, then what happens? The general public thinks that there is some demand into the stock, demand in the stock, and hence they also start buying it. So therefore, now what happens? At a higher rate further than this, when it is pushed to 80, public starts buying it at 80. And the stock gets pushed up to 95, 100, 150 and so on. Once the price reaches a significant high, the company which is, the brokers who have bought it will sell it and push the price down, causing the price to fall, where the general public will be affected. Did you understand? अभी देखो एक स्टॉक है जिसका प्राइस है मार्केट में 50 रुपीज. लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड हियर. See, the stock price is supposing ABC Limited is priced at rupees 50. Now management hires a broker just to show the value of the share is high. So what it does, it is going to say, you buy the share, create artificial demand, show general public as if the share is moving up because of some demand. So the brokers buy the share in bulk. They will not buy 100 shares, 50 shares, but will buy 10,000, 20,000 shares, or even a lakh of shares, even lakhs of shares. So this will create an artificial demand in the market. जब इतना सारा 1 लाख 2 लाख शेयर खरीदता है एक पर्टिकुलर कंपनी का, तो मार्केट में उसका डिमांड बढ़ता है. पब्लिक को लगता है कि कुछ कारण है, न्यूज़ है, या वो कंपनी में कुछ अच्छा हुआ है कि प्राइसेस आर गोइंग अप, कंपनी ने कुछ ऑर्डर बैक किया है फॉरेन से, कंपनी को ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है एक्सेट्रा. तो पब्लिक क्या करती है, और जब ये लोग खरीदते हैं 1 लाख शेयर, तो उसका नतीजा प्राइस बिकम्स ₹100. फॉर एग्जाम्पल प्राइस 50 से ब्रोकर ने आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके 100 बना दिया. तो अभी 100 बनाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे 100 बनने के बाद पब्लिक को ऐसा लगता है कि 50 से 100 तो शायद फटाफट 200 भी पहुंच जाएगा करके पब्लिक भी खरीदने लगती है. पब्लिक के कौन से रेट में खरीदती है? 100 रुपीज में. ओरिजिनल प्राइस क्या था? 50 रुपीज. तो ब्रोकर्स ने 50 को 100 तक धक्का दे दिया, खरीद के. तो जब अब पब्लिक खरीद रही है और भी डिमांड आएगा, शेयर प्राइस बनेगा से 150. शेयर प्राइस को 150 धक्का दे दिया उन्होंने. तो शेयर प्राइस 150 जब हो गया, what happens is, तो अभी जब शेयर 50 रुपया से 100 रुपये तक हमने धक्का दिया है, तो 100 रुपये में जब पब्लिक खरीदने आती है तो उन्होंने और भी ऊपर धक्का दिया है 150 में. तभी जो ये ब्रोकर्स ने जो 50 रुपये में इसे खरीदना चालू किया, टिल 100 रुपीज, 150 भी उनके लिए प्रॉफिट है. तो वो लोग क्या करेंगे, फटाफट वो शेयर को बेचेंगे, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे मार्केट से. इसके वजह से फंसता कौन है? फिर जब वो लोगों ने बेचा, ये 100 रुपीज का 150 का शेयर बिकम्स ₹75, क्योंकि ये लोगों का बाइंग बहुत बल्क है. समझ में आया आपको?
ये लोगों का बाइंग बल्क था, तो ये लोगों ने जब ये बेचा तो बहुत नीचे गिरा, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स इन्होंने बेचे और नीचे गिरा दिया। जिन्होंने 100 में खरीदा या 125 में खरीदा, 150 में खरीदा, उनको अभी इतने में बेचना पड़ रहा है, जिसके वजह से नुकसान है। समझ में आया आपको? Are you following all? Yes, ma'am. All of you? So this is called as, this is because these things happen only because of listing. So this is one of the drawbacks of listing. जब ट्रांसपेरेंटली विजिबल होता है तभी क्या करते हैं कंपनी, क्या करती है, मैनिपुलेट करती है प्राइस को। जब 50 रुपये के शेयर को ब्रोकर को बोलती है आप खरीद, तो सेटिंग बना के रखती है। डू यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स? सेटिंग बना के रखती है ब्रोकर के पास और बोलती है 50 का शेयर है, अभी थोड़ा थोड़ा खरीद के मार्केट में ऐसे दिखाना इसके डिमांड ज्यादा है और उसका भाव बढ़ा दो आप लोग। क्योंकि शेयर मार्केट में डिमांड सप्लाई फैक्टर्स जो है उसके वजह से भाव बढ़ते हैं या घटते हैं कोई भी शेयर के, राइट। तो जब डिमांड ज्यादा होता है वो शेयर का प्राइस 50 से 100 रुपया हो जाता है, और जब डिमांड नीचे गिरता है व्हाट हैपेंस, शेयर का प्राइस वापस 50 को चला जाता है। तो अभी कंपनी ने जब सेटिंग की है ब्रोकर के साथ, उन्होंने क्या किया है, 50 रुपये का शेयर को 100 रुपया तक लेके गए हैं ऊपर। मतलब दे वेंट ऑन बाइंग टू द point till the point that the share price reached 100 rupees. तो अभी 100 रुपीज में जनरल पब्लिक खरीदने लगी है। जब जनरल पब्लिक खरीदती है क्या होती है, शेयर का प्राइस, जनरल पब्लिक खरीदती है, शेयर का प्राइस जो है अच्छा, तो सॉरी, शेयर प्राइस जो है 50 से अपने ऊपर 100 तक धक्का दिया है। तो अभी 100 में लोगों को लगता है शेयर में कुछ खास खबर है, कुछ कंपनी ने ऑर्डर बैक किया है, इसीलिए ऊपर 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 और खरीदते हैं, और खरीद के उसका भाव को धक्का दिया किधर, 150 में। तो 150 पहुंच गया, जिसने 50 से लेके 100 तक खरीदा है वो 150 में बेचेगा, क्योंकि उसको मालूम है शेयर में कोई न्यूज नहीं है, उन्होंने बस सीन दिखाने के लिए इतना बड़ा डिमांड दिया है। तो अभी जब शेयर को बेचेंगे क्या होता है, इट फॉल्स डाउन टू 75। So when it falls down to 75, what will happen? Those people who have started purchasing at 100 or after 100 levels are at a loss. समझ में आया आपको? Are you following? Nave? Yes, yes. Zuhan had asked a doubt. Zuhan, आपको समझा नहीं था, अभी समझ में आया? Yes, no, कुछ तो बताओ आप, because it becomes very difficult to understand. So now coming back to the next aspect of it. Now the next aspect we see is, what is another drawback of this is listing again सारे information, sensitive information like business acquisition plan, expansion, diversification, जो भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए वो भी आपको publicly disclose करना पड़ता है। But what happens if you do that? Actually competitors को clue आ जाती है कि कंपनी कुछ कर रही है, करेक्ट। तो इसके वजह से क्या होता है, वो लोग ये इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करने लगते हैं। और इसके वजह से और एक चीज है, जब कंपनी का जो शेयर्स अगर लिस्ट होता है, मतलब पब्लिक बाई कर सकती है, तो क्या होता है, कोई कोई कंपनी ऐसा है कि दे विल डिमांड, I mean they will buy a lot in the market and they will tell the company, if I sell your shares it will fall and henceforth act as per my wish. समझ में आया? देखो, जब पब्लिक में जब ट्रेड हो रही है, शेयर कोई भी खरीद सकता है, तो कोई कॉम्पिटिटर या कोई कंपनी के ऊपर जिसको कंपनी के ग्रोथ जिसको पसंद नहीं है वो भी बोल सकता है
अभी मैंने आपके शेयर खरीदे हैं, अगर मैं बेचने लगूंगा तो शेयर प्राइस गिरेंगे, आपका कंपनी का रेप्यूटेशन खराब होएगा, तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ये सारे भी पॉसिबिलिटीज है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक एक्सचेंज में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं, तो इन सब के लिए भी the listed stock is exposed to all these risks. Any doubt so far? After having seen what is listing, what are the advantages of listing to investors, what are the advantages of listing to the company, and what are the disadvantages of listing, we still feel listed company is more liquid, it is more transparent in its operations, it is more disciplined in its operations. Hence, SEBI says, in case you raise capital from the general public, your shares will have to be listed with a recognized stock exchange. So, any doubt so far? We are through with listing. Now, I'll start with secondary market. Once the stock is listed, it goes into the secondary market. So, now primary market may shares were issued. It was also, capital market is called as industrial securities market. Another name for capital market is industrial securities market, capital market. It has two classifications based on the tenure of investments. It had money market, capital market had, primary and secondary market. Okay? We saw primary market, then from primary market, after primary market process, once the shares are allotted, these shares will have to be listed for it to be traded in the secondary market. Buying, selling secondary market में होने के लिए there was a process called listing. That was what we were seeing now. Based on the instrument, we have equity and debt instruments dealt in secondary market. Are you following? Dealt in capital market. Capital market में equity instruments और debt instruments की dealing होती है. Equity instruments क्या क्या है? Your equity shares, preference shares, right? Debt instruments में क्या क्या होती है? Can anybody answer me? What are the debt instruments in capital market? Still have to be bought and sold. I don't want to have all these securities till I live, right? I want to make profit. जैसे ही profit आता है, I don't have any emotional attachment to my investments. Remember one thing, investments are free from your emotional attachments. They are only to make profit or to have some savings kind of gain. What is an investment? Let me be clear. What is an investment? किसी जगह पे मैम पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, क्या है? पैसे को बढ़ाने के लिए। पैसे को बढ़ाना मतलब? Can you be clear? बिजनेस में पैसा लगाना मैम। बेटा, sorry, can you come again? बिजनेस में पैसा लगाना। बिजनेस में पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट. What else? मैम इन्वेस्टमेंट मतलब किसी जगह में इन्वेस्टमेंट किसी चीज में पैसे को लगाना, उससे अपने को अच्छा रिटर्न मिले। Okay. What else were you saying? Rafiq, आप भी कुछ बोल रहे थे? मैम शेयर खरीदना। शेयर खरीदना, तो क्यों आप इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो? शेयर खरीदने आप इन्वेस्टमेंट क्यों बता? शेयर खरीदना मैम शेयर खरीदते हैं ना तो इन्वेस्ट करते हैं ना। पर क्यों उसको इन्वेस्ट क्यों बोलते हो? उसको खर्चा क्यों नहीं बोलते हो आप? Why don't you call it as an expenditure? मैम उसको रिटर्न मिलेगा ना, इसलिए Sorry? रिटर्न मिलेगा। वेरी गुड. सी, इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज जो हाथ में पैसा है उसको मैं किसी चीज में रख रही हूँ so that after a certain period, right, I get some extra money on it. It's a reward for parting with my liquid cash. It's called as
and that is what I call as investment. So when I say investment, if I'm going to be investing in securities, obviously it is going to be yielding me something. से शेयर में इन्वेस्ट किया तो कंपनी ने अच्छा किया तो प्रॉफिट का शेयर मुझे भी मिलेगा, बिकॉज आई हैव टेकन पार्ट ओनरशिप. क्योंकि मेरा बिजनेस होता तो उसके ऊपर से अगर मुझे लाभ होता तो उसका हिस्सा मुझे मिल जाता है. सेम वे जितना मैंने इन्वेस्ट किया उतना प्रॉफिट मुझे भी आएगा, राइट? भाव बढ़ा तो मुझे भी उसमें शेयर आएगा. सेम वे शेयर इज नथिंग बट अ पार्ट ओनरशिप, माय शेयर ऑफ ओनरशिप उसको बोलते हैं. एंड इफ इट इज ओनरशिप ऑब्वियसली इट इज रिस्की, राइट? कंपनी डूब गया तो मेरा ओनरशिप भी डूब गया, सो आई कैन नॉट क्लेम एनीथिंग. सो अभी ये जो ओनरशिप है प्राइमरी मार्केट कंपनी से आपको एंटाइटल मिलता है कि यू आर पार्ट ओनर ऑफ द शेयर. दैट हैपेंस इन प्राइमरी मार्केट. तो कंपनी क्या करती है, वो शेयर जो आपको एलिजिबिलिटी दिया है, वो एंटाइटलमेंट जो दिया है उसको आप बेच सकते हो. ये करके उसने अपना सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट किया है अपने पर्टिकुलर शेयर को. समझ में आया? आर यू फॉलोइंग? जो एंटाइटलमेंट दिया है Yes, ma'am. उसको बेच सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, जब भी आपको चाहिए आप बेच सकते हो. So that is done when they list the securities in the secondary market. Any doubt? No, ma'am. Okay. Now talking about features of secondary market. Secondary market again gives you liquidity. Liquidity मतलब any time. Liquidity का मतलब क्या है? जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए. जो easily cash में convert हो जाए. Anything else? Anything else? Anything else? चेक मैम. Sorry? Can you come again? शफीक बताओ बेटा, आप कुछ बता रहे थे. मैम चेक इजीली होता है ना कन्वर्ट. अच्छा मैं बता, इट्स नॉट इजी कन्वर्शन इनटू कैश. लिक्विडिटी वो चीज है जिसके वैल्यू आप कम किए बिना, सपोजिंग आई टेक से टेक अबाउट 100 grams ऑफ गोल्ड, आई टेक इट टू अ ज्वेलर्स शॉप. वो चेक करता है जेन्युइन है तो खरीद लेता है, पर मार्केट वैल्यू में खरीदता है क्या? नहीं. No, ma'am. गोल्ड इज नॉट लिक्विड, करेक्ट? क्योंकि जो चीज आपको मार्केट वैल्यू में इजीली और एबल टू एनकैश, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड. आर यू फॉलोइंग? लिक्विडिटी Yes, ma'am. बोलते हैं आपको मार्केट वैल्यू भी मिलना चाहिए, एट द सेम टाइम इट शुड बी इजीली एनकैशेबल. दैट इज व्हाट वी से. दिस इज आई मीन इक्विटी और सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज है बिकते हैं वो लिक्विड क्यों है? क्योंकि कभी भी आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो. And that too because there are lot of buyers and sellers, thousands of buyers and sellers in the market. Therefore, they can be easily bought and sold. एक नहीं तो दूसरा आके खरीदेगा. अगेन टाइम लैग जो है, न्यूज इंफॉर्मेशन जो कंपनी से आती है, राइट? टाइम लैग बिटवीन न्यूज, फटाफट लाइक सी somebody has already posted an order, मेरा टर्मिनल में रिफ्लेक्ट होता है. मैं ब्रोकर के पास बोलती हूँ से 30.35 में बेचना, तो बोलता है गिर गया सर 30.5 आई मीन 30 आ गया, राइट? आर यू फॉलोइंग? तो ये फटाफट तुरंत आ जाते हैं, रियल टाइम बेसिस में आता है मुझे. एंड सेकेंडरी मार्केट जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन मार्केट में आता है कंपनी के बारे में, सपोजिंग कंपनी बैक्स अ गुड ऑर्डर फ्रॉम रशिया, फटाफट उसका प्राइस ऊपर चला जाता है. आर यू फॉलोइंग? दोनों तरह के न्यूज रिफ्लेक्ट होता है इसमें. किसी ने आपके ऑर्डर का प्राइस भी फटाफट पता चलता है. दूसरी चीज है क्योंकि जो बायर तैयार है वो प्राइस में आपका सेलिंग हो रहा है क्या वो भी देखता है, वो भी रियल टाइम में होता है. सेकेंडली एडजस्टमेंट जो है, जो भी न्यूज आता है उसके लिए भी एडजस्ट हो जाता है स्टॉक.
समझ में आता है? आर यू फॉलोइंग? यस मैम। ओके, आई विल रिपीट लिक्विडिटी. शुभम, सी, लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट वैल्यू में इनकैशेबिलिटी होना चाहिए. सपोजिंग मार्केट वैल्यू इज से 926 रुपीज पर ग्राम ऑफ गोल्ड. ठीक है, मैं दुकान में गोल्ड का 2 ग्राम लेके जाती हूँ, तो कितने में लेगा? से 1500 में लेगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि वो बोलेगा ये है वो है एंड ऑल दोस एक्सक्यूजेस हिल गिव मी. मार्केट वैल्यू में वो नहीं लेता है. पढ़िए, यही आप इक्विटी शेयर बेचोगे, आपका जो टाटा मोटर्स है वो आप अभी सपोजिंग 150.20 चल रहा है, 150.20 में आप बेच सकते हो. जो मार्केट वैल्यू में है उसमें निकाल सकते हो. डू यू अंडरस्टैंड? So that is what is meant by liquidity. It should be easily encashable at market value. Add that word. Next is lower transaction cost. Again, since we have so much of volume, सबके ऊपर spread हो जाता है और not only you, everybody else is bearing, तो divide हो जाता है. आपको transaction cost बहुत कम रहता है. अगर से only 10 people are using internet, तो टावर वेवर लगाने का क्या होता है, सबको ज्यादा पे करना पड़ता है. वो 10 लोगों को, अभी 1000 लोग यूज कर रहे, तो क्या होता है, बढ़ जाता है कॉस्ट. राइट? So that is how it works. For transaction cost जो है बहुत कम होता है because of the volume of transactions. Again, demand and supply जो है उसके वजह से ही प्राइस डिस्कवर होता है. सपोजिंग ऐसे मार्केट में 150 रुपीज है स्टॉक का प्राइस, अगर मैं बोलूँ मुझे बेचना है 200 रुपया दो, तो ही मैं दे दूंगी. लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे बिकॉज इट इज अवेलेबल टू देम एट द प्रॉपर प्राइस इन द मार्केट. जितना डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स मैच होता है, जो खरीदने को तैयार है और जो बेचने को तैयार है, वो प्राइस के हिसाब से हम मार्केट वैल्यू गॉज करते हैं. दैट हैपेंस ओनली इन द मार्केट. एंड अगेन इट इज अ वेरी गुड सेविंग इन्वेस्टमेंट. सेकेंडरी मार्केट में आपको सेविंग एवेन्यूज बहुत सारे हैं. एंड ऑल्सो दैट सेकेंडरी मार्केट में बहुत हेवी रेगुलेशंस है. यहाँ पे क्या होता है, रेगुलेशन होने की वजह से एक बार लिस्टिंग हो गई, वो स्टॉक को हर इंफॉर्मेशन बताना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, द कंपनी हैज टू वर्क इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर. कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर सकती है. आर यू फॉलोइंग ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू? यस मैम. यस मैम. Now we will proceed with the next aspects. यस. Major instruments in secondary market. What are the major instruments? We already discussed that. Zuhan said bonds, Ashwati said debenture, then I had said preference shares also are sold. Even mutual funds are today sold in stock exchange. So you know that you can purchase mutual funds online and sell them, right? Now when I talk about preference shares, what are preference share? What are fixed income securities? They are debt securities. Bond वगैरह में 8% रिटर्न, मतलब 8% ही देते हैं, राइट? जैसे मार्केट ऊपर गया तो भी आपको 8%, मार्केट नीचे गया तो भी 8%. हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स. हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स जो है प्रेफरेंस शेयर्स है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है. पहले वारंट्स भी रहते थे, शेयर वारंट्स बोलते हैं. थोड़े दिन तक वो लोग डेट इंस्ट्रूमेंट के जैसे होते थे, फिर बाद में यू कैन कन्वर्ट इट टू इक्विटी शेयर्स, बट इफ यू एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इन्वेस्टर. समझ में आया? आर यू यस मैम. What are the instruments traded? Your equity shares. You know what are equity shares? They represent part ownership, and so when the company is paying you the profit, you are entitled to the profit. When the company is facing a loss, you will have to bear the loss, but the loss is only to the extent of your investment, right? So which means अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, आपका नुकसान वो 100 रुपया ही है, उससे ज्यादा नहीं. 100 रुपए का शेयर 80 रुपया बन गया, तो वो 20 रुपया ही है आपका नुकसान, नहीं. बट यही प्रॉफिट होगा तो कंपनी आपको आपका शेयर बांट देती है, राइट? बाय वे ऑफ डिविडेंड, बोनस, जो भी बांटती है आपको भी शेयर रहता है इसमें. प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट देती है कंपनी. It is more like a debt instrument than an equity instrument, though it is called as
शेयर। प्रिफर्ड इन्वेस्टर्स यार, अभी जब कंपनी 8% देती है, मार्केट में कंपनी को प्रॉफिट भी आया तो भी 8% देती है, लॉस आया तो भी 8% देती है। अगर प्रॉफिट इक्विटी होल्डर्स को 20% देती है, आपको तो 8% ही मिलेगा प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, राइट? इट इज मोर लाइक एन इंटरेस्ट, फिक्स्ड होता है। इट्स कॉल्ड एज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। एंड अगेन एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप, थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा इनको मिलेगा। कंपनी के पास थोड़ा पैसा है, लॉन्ग टर्म लोन सेटल करके, बॉन्ड होल्डर्स को पे करके, डिबेंचर होल्डर को पे करके थोड़ा सा बचता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं। और कुछ भी नहीं बचता है तो नहीं देते हैं। बट इक्विटी होल्डर को तो नुकसान है तो नुकसान ही है। Bonds are IOUs issued usually by public sector entities. They are also fixed income debt securities. They are lending. If in case मैं bonds को subscribe करती हूँ, which means I am lending to the company against some interest. Bond के ऊपर 8% या 12% जो भी है कंपनी फिक्स कर देती है. It is usually fixed your PLR rate. Debentures are also, if I am an investor, I am lending to the company. Company borrows from me, issuing an instrument. Now talking about variable instruments, they are equity shares. Market के हिसाब से, demand supply के हिसाब से company अच्छा perform किया तो उसका shares demand में रहता है, and so prices go up. Derivatives are hedge instruments. ये हम derivative market में और detail में पढ़ेंगे. Are you following? Hybrid instruments. Hybrid instruments, sometimes preference shares can be converted to equity shares. मतलब थोड़े टाइम के लिए ये लोग डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे बिहेव करते हैं बेस्ड ऑन द रिटर्न एक्सेट्रा, एंड उसके बाद अगर इन्वेस्टर चाहता है तो वो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है. देयर आर आल्सो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अवेलेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. And the players in the market are usually brokerage. We will see the players are issuers, जो issuing company रहती है. Investors are people who subscribe for these issued instruments. Then we have at brokers who are helping, who are intermediaries who help buyers and sellers meet virtually and sell and buy their shares accordingly, right? And advisory services, they are again brokers or even dealers or merchant bankers who are going to help everybody, whether it is a corporate investor, whether it is a retail investor, whether to go in for the share or not. Then we have banks, insurance companies, bankers are there who are essential. If you want to transact in any of the financial instrument, you need to have a bank account, right? You have insurance companies who are also going to be investing in capital market. अगर आपने insurance policy लिया, पैसा किधर जा रहा है आपका? मार्केट में जा रहा है, right? Mutual fund companies are again intermediaries. They are called as asset management company. So I will close the meeting here, restart it.